Uh, okay. So, good evening, everyone. I hope you all are doing well. So today we have the pleasure of welcoming a special guest to our Zoom meeting, Mr. Prashant Gautam, who has over 15 plus of years experience into world's leading bank and MNCs. Well, I believe today's session is going to be insightful and perspective on business analytics. So without further ado, please join me in giving a warm virtual welcome to Prashant, sir. Sir, on to you. Thank you, Aditesh. Thanks for the introduction. Thank you. Hello, everyone. Hope you guys are doing good. Uh, Before we start in the, I would say, a deep dive into the what is a business analyst and what a business analyst does, I'd like to give a very quick, brief introduction about myself. Um, I am Prashant Gautam. I am a business analyst currently and have been uh, working as a business analyst or a business consultant role from last 15 plus years of experience. Uh, my core expertise around the business analysis lies into the banking domain, and I have been part of different I would say different entities or different business areas in the bank. Uh, and I'll as we progress, I'll uh, kind of move you through like what are the sectors or what are the business areas in a bank. But yeah, a very quick for you to understand. I have worked as a retail banking business analyst. I have worked in as a wealth management business analyst. Also, I have been fortunate enough to work uh, on some of the products that are very niche in terms of trading and your capital markets. Uh, as a role on a role of a business analyst, I again have been fortunate enough to visit different countries across the world. I have worked for European region. I have worked in Asia Pacific in countries like Singapore, Hong Kong. I have worked for UK banks, and and business analysis as a role uh, gives you an opportunity to travel the world also uh, alongside the work that you do on day-to-day basis. So it helps. It's an kind of an added advantage that you get uh, or that gets associated with this role. Uh, Along with that, I'm on a personal front. I have a kid, and I enjoy spending time with my kid, and that's it. I think that's it from an introduction perspective. Uh, on in this today's session, I like to first walk you guys through what I understood from Shankar sir and Talentil, that you guys are all new to this business analysis world. So I'll not bore you with complex words and terminologies. I'll keep it very simple. That what is a business analyst, and through during the session, I hope it's fine if I use Hindi as a language also, so that I can relate to you guys and to make you understand what is a business analyst and business analyst चाहिए क्यों हमें in terms of software industry. हमें क्यों business analyst चाहिए and क्या क्या उसका रोल होने वाला है एंड आज तक भी क्या रोल रहा है और किस सेक्टर्स में किस जगह पे आपको बिजनेस एनालिस्ट दिखते हैं वर्क करते हुए और वो किस लेवल और किस हायरार्की पे जाके दे डू देयर प्रोजेक्ट्स. Yeah. Anything, Ajitesh, anything that you want to add or any questions from anyone before I start into this? Let's do the question and answer at the end. Okay. Okay. So let's start with the session. I hope the session would be insightful enough. So yeah, very much Okay. excited. Yeah. Thanks, Ajitesh. Okay.
So before we quickly start, uh, on the chat window, just type what's your background in case you are working or not working. Kind of quickly in a minute, I'll pick first 5 or 6 uh, replies and we'll see like क्या vibe है मतलब group की, what's the experience level of the group. Okay, Amitosh says student. Okay, not working. Okay, Sachin says currently working in BPO sector. Nice. Computer with graduate fresher. Debasis, I think you can correlate. Shipani also is MBA. I hope she also correlates with that student. MBA in HR. Currently not working. Want to switch to IT. Nice. Cool. So मुझे क्या वाइब आ रहा है कि इट्स लाइक मोर यू गाइस आर मोर इनटू द ईदर इनटू डिफरेंट सेक्टर्स or some majority of you are student and pursuing कि career start करना है. तो what we'll start with the first slide. So slide से हम मतलब I'll not bore you guys with slides. जो डिलीवरी मॉडल रहेगा स्लाइड के ऊपर जो लिखा है इट इज वन थिंग बट प्रैक्टिकली हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड दैट्स वेयर आई विल बी फोकसिंग मोर. ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट. सो give me a moment. Okay. सो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या है. uh, अभी डोंट लुक इनटू दिस डेफिनेशन वेयर वी से इट्स एक्ट एज अ ब्रिज. सो क्या होता है, अब एक अगर मैं पहले स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू देता हूँ आपको. जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, कोई भी ज्वाइन करते हो, आप ज्वाइन करते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, आप ज्वाइन करते हो एक लाइक एनालिटिक्स टीम में ज्वाइन करते हो, आप ज्वाइन करते हो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में, या आप ज्वाइन करते हो किसी Either आईटी more कंपनी. level. May I request people to go on mute, please, in case there are no questions? Okay, thank you. So, अगर आप किसी आईटी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, या आप किसी बड़े प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी या कोई बैंक को टारगेट कर रहे हो, व्हेन वी से बैंक, इट्स नॉट कि जो आपका रिटेल ब्रांच में आप जाते हो. बैंक के भी अपने अपने आईटी सेक्टर्स, आईटी एंटिटीज या आईटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई होती है उन्होंने, जहाँ पे आप एंड टू एंड एक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक टेस्टर, या एक बिजनेस एनालिस्ट, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करते हो. तो क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे रोल होते हैं. लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ, आप इन्फोसिस को ज्वाइन करते हो तो वो क्या करते हैं, एक कैंपस से वो आपको ट्रेनिंग देते हैं. वो आपको ट्रेन करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे टेस्टिंग में, कुछ लोगों को वो क्या करते हैं, एक जेनरिक एनालिस्ट टाइप के रोल में करते हैं. अब ये एनालिस्ट जो होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है एक बिजनेस एनालिस्ट से. ठीक है, अभी जब आप इन्फोसिस को ज्वाइन करोगे तो आपको एक बेंच पे रख दिया जाता है, जहां से आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है. टाइम टू टाइम वहां पे प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा इस रिसोर्स की स्किल सेट की रिक्वायरमेंट, अगर कोई एमबीए है तो वो मे बी एक टेस्टिंग में भी डाल सकते हैं उसको, या उसको वो उठा के बोलेंगे ठीक है तुम एक जूनियर बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ, हमारी बिजनेस एनालिसिस टीम का पार्ट बन जाओ. तो अब वहां पे एक एक टीम हो गई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, जो हार्ड कोर डेवलपमेंट करेंगे. उसमें आपके, आप बोलो मोबाइल डेवलपर्स हो गए, आपके डॉट नेट डेवलपर्स हो गए, जावा डेवलपर्स हो गए. दूसरी टीम हो जाएगी, और इसमें आपके एनालिटिक्स की टीम्स भी आ गई, जो बिजनेस एनालिटिक्स करेंगे, जो पाइथन पे काम कर रहे हैं आपके, और डिफरेंट बीआई टूल्स पे, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स पे काम कर रहे हैं. सो दीज ऑल आर डेवलपर्स. अब डेवलपर्स के बाद क्या होगा, एक लेयर आएगी टेस्टर्स की, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे. तो वो एक अलग टीम होती है. उसके बाद एक टीम होती है बिजनेस एनालिस्ट की, जो एक्चुअली क्या होते हैं, ये लोग ना तो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, ना ही ये सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं, पर इनका रोल ऐसा होता है कि इनको समझ दोनों चीज आनी चाहिए. और
इनकी नॉलेज ऐसी रहनी चाहिए कि ये जो डेवलपर को ये समझा सके करना क्या है, और टेस्टर को ये बता पाए टेस्ट क्या करना है, और क्या उसने सही टेस्ट किया है या नहीं किया है। और ये डायरेक्टली एक क्लाइंट जो आपका होता है उससे डील करता है। उसके ऊपर आता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर, जो पूरे प्रोजेक्ट, जब आप जाते हो तो एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, तो वो होती है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम। सो ये एक ओवरऑल हाई लेवल स्ट्रक्चर होता है। अ, और उससे भी ऊपर आ जाते हैं क्लाइंट्स आपके। तो जो कि क्लाइंट्स होते हैं, अगर आप सर्विस कंपनी में काम कर रहे हो तो इन्फोसिस है। अब इन्फोसिस के लिए हम कहते हैं कि एक, अगर मैं एक बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, तो लेट्स सपोज आईसीआईसीआई बैंक, तो एक आईसीआईसीआई बैंक उसका क्लाइंट हो गया, तो वो इन्फोसिस का क्लाइंट होगा, उसके नीचे आपकी ये पूरी हायरार्की बैठ जाएगी। अगर आप एक बैंक में ही काम करते हैं तो आपका जो क्लाइंट हो सकता है वो उनके बिजनेस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जो कि आईटी से बाहर होते हैं। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि बिजनेस एनालिस्ट क्या है, मतलब कर क्या रहा है। मतलब सब काम तो हम सुनते हैं कि डेवलपर कर रहा है, डेवलपर ने कोड डेवलप कर दिया, मोबाइल स्क्रीन डेवलप कर दी, यूआई डेवलप कर दिया। या अगर कोई डाटा एनालिटिक्स वाले हैं वो बोलेंगे हमने रन करके डैशबोर्ड्स बना दिए, डेटा ला दिया। तो बिजनेस एनालिस्ट का क्या जरूरत है। अब एक्चुअली में बिजनेस एनालिस्ट, अगर आप इस डेफिनेशन पे, अब वापस इस डेफिनेशन पे आते हैं, तो वो क्या बता रही है हमें कि बिजनेस एनालिस्ट ब्रिजेस द गैप बिटवीन आईटी एंड बिजनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस, अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको बिजनेस की इंसाइट नहीं होगी कि बिजनेस में करना क्या चाहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं डेटा एनालिटिक्स के वर्ल्ड में एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लोगों को एयरलाइंस का पता हो। अब समझो एक एयरलाइन है जिस जो अभी दिल्ली जाने के लिए या भुवनेश्वर जाने के लिए, उस एयरलाइन में अभी वो जाती है भुवनेश्वर टू दिल्ली, फिर दिल्ली से बेंगलोर। अब लेट्स सपोज एयरलाइन का नाम बोल देते हैं आप, कुछ भी, इंडिगो आजकल काफी पॉपुलर है। इंडिगो की फ्लाइट जाती है भुवनेश्वर दिल्ली, दिल्ली बेंगलोर। अब क्या होता है, इंडिगो वाले बोलते हैं कि हमें ना डायरेक्ट बेंगलोर फ्लाइट चलानी है, वो है नहीं। तो उससे पहले आ, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली फ्लाइट नहीं चलाएगा। वो देखेगा कि फ्लाइट ऐसा तो नहीं कि दो लोग जा रहे हैं खाली फ्लाइट जा रही है, तो उससे पहले वो एक एनालिसिस रन करेगा कि क्या मैं डायरेक्ट फ्लाइट चलाऊंगा तो मेरे पास उतने कस्टमर हैं, जो पैसेंजर हैं कि जो ट्रेवल भी कर पाएंगे। अब उसके लिए ये एक परफेक्ट एग्जांपल है बिजनेस एनालिस्ट का रोल एक डेटा एनालिसिस एनालिसिस के पार्ट में। तो वो क्या बोलेगा कि ठीक है, तो हमें ऐसा डेटा दो कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी फ्लाइट में पहले दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फिर बेंगलोर जाते हैं। दूसरी चीज ये देख सकता है कि कैसे कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो जिनका करंट एड्रेस भुवनेश्वर का है और वो दिल्ली से आ रहे हैं, भले ही वो स्पाइस जेट ले रहे हैं, एयर इंडिया लेके दिल्ली पहुंच रहे हैं, पर वो कितने ऐसे कस्टमर हैं जो भुवनेश्वर को बिलोंग करते हैं, पर वो दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट लेके बेंगलोर जा रहे हैं, पर उनका एड्रेस भुवनेश्वर का है। तो ये सब हो गया। अब इस पे क्या होगा, इसमें आपको एज अ डेटा एनालिस्ट आपको भर भर के डेटा मिल जाएगा, डेटाबेस से उठाएंगे, पूरा पूरा डंप देंगे, आपको पकड़ा दिया जाएगा कि ऐसा सेक्टर पकड़ो जिनका एड्रेस, ऐसा कस्टमर्स निकालो इस पूरे डेटाबेस में जिसका एड्रेस, करंट एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस भुवनेश्वर है। या ऐसे कस्टमर निकालो, इंडिगो का दूसरा डेटा आ जाएगा कि ऐसे कस्टमर निकालो जो इंडिगो की फ्लाइट पे पहले भुवनेश्वर से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर जाते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया डेटा एनालिसिस का काम कोर। पर लेट सपोज आप लोग डेटा एनालिस्ट है, आपने वो डेटा निकाल दिया, तो अब क्या करोगे उस डेटा का। आप आपसे किसी ने बोला कि डेटा निकालना है, पर करना क्या है उस डेटा का, और क्यों हमें सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए। क्यों हमें ये नहीं चाहिए कि कोई कोलकाता जा रही है फ्लाइट, कोलकाता से इधर आ रही है। क्यों हमें ये नहीं देखना कि बाकी एयरलाइंस कैसे जा रही हैं, उसका डेटा नहीं उठाया। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है, ये सब डिसीजन लेता है बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, फिर जाता है क्लाइंट से, क्लाइंट है हमारा इस केस में इंडिगो। वो इंडिगो के पास जाएगा, वो बोलेगा ठीक है आपने बोला है ऐसा आपको डेटा चाहिए, पर उसका क्यों चाहिए, क्या आप उससे निकालना क्या चाहते हो, डिराइव क्या करना चाहते हो। तो वो बिजनेस एनालिस्ट पहले क्लाइंट से के पास जाएगा, उसे समझेगा, फिर अपने डेटा एनालिसिस की टीम के पास आएगा, जो डेटा एनालिस्ट हैं जो आप लोग हो, उनको बोलेगा कि अच्छा ठीक है, ये ऐसा मुझे डेटा चाहिए,
और ऐसा ऐसा आपको डैशबोर्ड बनाने हैं और वो डैशबोर्ड मुझे वापस कीजिए। और जब आप वो डैशबोर्ड पे डेटा एनालिस्ट काम करेगा, वो डैशबोर्ड क्रिएट करेगा और उसका मीनिंगफुल डेटा निकालेगा उस सब इंफॉर्मेशन में से जो पूरा डंप दिया है डेटा का। उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट जाके वो रिपोर्ट्स को वापस क्लाइंट को एक्सप्लेन करेगा और फिर बताएगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें अब ये समझो कि ब्रिजेस द गैप जो लिखा है डेफिनेशन, वो ये वाली बात है कि वो क्या करता है, एक कोर आईटी टीम और कोर बिजनेस टीम। जो बिजनेस टीम है उसको आईटी नहीं आता, जो आईटी टीम है उसको बिजनेस नहीं पता कि बिजनेस में चलना कैसे है। उन्हें नॉलेज है बट वो जानते नहीं है कि उसका करना क्या है। तो उन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज बन के खड़ा होगा, वो होगा एक बिजनेस एनालिस्ट। तो तो अब वो क्या करता है, अब बोल रहा है एंगेजेस इन अ वाइड वैरायटी टास्क टू इंप्रूव एफिशिएंसी क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड बीइंग डिलीवर्ड। तो इस सब को छोड़ दो, मतलब एक्चुअली में क्लाइंट को चाहिए क्या, उसको एंड में डिलीवरी करके दे रहा है कि मुझे अच्छा तुमको ऐसा डेटा चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है क्लाइंट का, वो बिजनेस एनालिस्ट है, ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ना ही टेस्टर है। ये सब लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट से बात होती है कि भाई मुझे ये चीज बनाना है। लेट्स सपोज जोमेटो, जोमेटो में अभी अगर आप लोगों को याद होगा कोविड के टाइम पे जोमेटो ने डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी थी। और किसी किसी सिटीज में तो लिकर डिलीवरी भी करने का लाइसेंस ले रहे थे ओके, क्योंकि लाइंस बहुत लग रही थी। तो आपका जो वाइन शॉप्स होते हैं वहां से वाइन लेके वो लोग वाइन डिलीवर कर रहे थे। लाइसेंसिंग वगैरह की बात अलग थी। बट अब सोचो ऐप में बैठे बैठे आप कैसे करोगे, आप तो सिर्फ खाना ऑर्डर कर सकते हो, सिर्फ फूड ऑर्डर करोगे। तो ये चीज, नई चीज एक ऐप में लाना, कोई बैठ के वो जोमेटो वाला सॉफ्टवेयर को थोड़ी ना फोन करेगा डेवलपर को कि भाई ऐसा बना दे और मैं कर दूंगा। वो जाएगा बिजनेस एनालिस्ट के पास, बिजनेस एनालिस्ट को समझाएगा मुझे चाहिए क्या, कैसा दिखना चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, कैसे बनना चाहिए। वो जाए, फिर बिजनेस एनालिस्ट समझेगा, डेटा बनाएगा, डॉक्यूमेंट्स बनाएगा उसके ऊपर, उसको ले जाएगा अपनी डेवलपमेंट टीम के पास, उसे बोलेगा कि मेरे को ऐसा चीज चाहिए। कभी कभी मॉकअप स्क्रीन्स भी बनाएगा कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ये चीज चलनी चाहिए, ये बटन पे क्लिक करे तो ऐसा जाए। एंड देन डेवलपर उसको बिल्ड करेगा और टेस्टर आपका उस चीज को टेस्ट करेगा। ठीक है, अब ये जैसे बोल रहा है इट इज ऑफन मिस इंटरप्रेटेड दैट बिजनेस एनालिस्ट इज सेम एज प्रोजेक्ट मैनेजर। तो बिजनेस एनालिस्ट बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता है। बिज- एक एक प्रोजेक्ट, आपको मैं सिंपल बात बोलता हूँ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो बिजनेस एनालिस्ट नहीं होता है कभी भी। वो अलग रोल है, वो प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। पर एक बिजनेस एनालिस्ट जो होता है ना, वो क्या करता है, वो बिजनेस एनालिस्ट के काम भी करता है और कभी कभी जब प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है उसके काम भी कर सकता है। तो बिजनेस एनालिस्ट, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हो ना, तो आपके पास एक एज रहता है। एक तो आप अपने आप ही सब वर्ल्ड से बात कर रहे हो, आप ही ट्रेवल कर रहे हो, आप ही घूम रहे हो, आप जा रहे हो, आप समझ रहे हो, आप पूरी टीम्स को एक तरीके के लीड बन गए हो। आप समझा रहे हो उन्हें चाहिए क्या, डेवलपर्स को, टेस्टर्स को। उसके बाद आप कभी कभी जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल भी कर पा रहे हो। तो आपकी लर्निंग देखो, आप दो दो तरीके की लर्निंग है, विच इज गुड, कि आपको एक्स्ट्रा आपका लर्निंग का स्कोप भी बढ़ जाता है बिजनेस एनालिस्ट के प्रोफाइल में जब आप जाते हो। तो कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, please. ओके तो अभी अगर हम इसको लेफ्ट वाली साइड जो रिक्वायरमेंट्स लिखा है इसे छोड़ दें, अब आप ये देखो, आ, जो राइट में पिक्चर्स बनी है, पूरा फोकस हमारा उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम, आई डोंट थिंक वी कैन जूम इट, बट अगर हम जूम नहीं भी करते तो लेफ्ट लास्ट वाली जो लास्ट फोटो है, लास्ट पिक्चर जो है, उस पे एक बार कर्सर ले जाएंगे प्लीज, लास्ट नीचे वाली। ठीक है, ये लिखा है व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड। अब एक कस्टमर था, कस्टमर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कस्टमर था, उसने बोला मुझे पेड़ के ऊपर ऐसे एक टायर लगा के झूलना, झूलने के लिए एक कुछ चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये कस्टमर को चाहिए था, उसने बोला। अब उसके पास कोई फोटो नहीं है, उसने बोला मुझे एक झूला बनाना है, एक पेड़ पे गार्डन में एक झूला बनाना है। उसकी सिंपल जरूरत थी। अब देखो, अब कस्टमर ने जब एक्सप्लेन किया, तो आप आ जाओ फर्स्ट वाली फोटो पे। कस्टमर ने उसको बोला कि मुझे झूला चाहिए, उसमें कुछ बैठ सकता हूँ मैं। ठीक है, अब जब कस्टमर ने एक्सप्लेन किया तो वो भी बहुत वेग बताएगा, जैसे मैंने वो लिकर वाली बात बताई आपको जोमेटो पे, कि मुझे ऐसा चाहिए कि लिकर भी वाइन शॉप से मुझे वाइन ऑर्डर हो जाए जोमेटो से। अब इतना ही बोलेगा कस्टमर आपको आके, ठीक है वाइन ऑर्डर होने की फैसिलिटी चाहिए। अब वो काम बिजनेस एनालिस्ट का है कि उसे समझना क्या है। अगर
अगर आपके पास बिजनेस एनालिस्ट है ही नहीं समझो, तो इस केस में क्या होगा? जब कस्टमर ने बताया झूला चाहिए, अब सब लोगों ने ऐसा किया। अब आप फोर्थ पिक्चर पे जाओ, प्रोग्रामर ने क्या बताया? प्रोग्रामर ने बनाया झूला पेड़ गार्डन में। क्या आप लोगों को लगता है ये गलत है प्रोग्रामर की तरफ से? नो, राइट? नो। गलत नहीं है। प्रोग्रामर, क्लाइंट ने मांगा मुझे झूला चाहिए गार्डन में एक ट्री के ऊपर, उसने झूला भी दिया है, ट्री भी दिया है, गार्डन भी दिया है, कुछ गलत नहीं है इसमें, सब सही है। ठीक है। अब इस चीज को अगर आप राइट में देखो, राइट वाला जो प्रोजेक्ट कंसल्ट बिजनेस कंसल्टेंट ने बोला है वो भी सही है। उसके पास भी झूला है बैठने का, ट्री है। ठीक है। अब आप देखो, अब बाकी पिक्चर छोड़ के ये दो चीज पे फोकस करो, दोनों ही अपने अपने केस में सही है, राइट? और अगर कोई आपका डिजाइनर है, डिजाइनर ने भी फर्स्ट पिक्चर देखी है, उसने भी, मतलब आप छोड़ दो, लास्ट टू पे ही देखते हैं, ये दोनों को फोकस करो, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। पर असली क्वेश्चन ये है, क्या इससे कस्टमर की नीड पूरी हुई? झूला तो हमने लगा दिया, हमने ट्री भी लगा दी, ट्री पे लगा दिया, रोप्स भी लगा दी, सब बना दिया, बैठने की जगह भी बना दी, क्या पर जो एक्चुअली चाहिए था झूलने के लिए, जो नीड थी कस्टमर की, वो पूरी हो पाई? आंसर है नो। क्लियर आंसर इज नो। तो इस केस में क्या है, आप देखो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बना दिया, जो कि डेवलपर हो गया, प्रोग्रामर इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर इसको टेस्ट भी कर लेगा कि हाँ झूला है, ट्री है, गार्डन है। सेकंड वाली फोटो इज ऑल्सो गुड। पर अब आपका बिजनेस एनालिस्ट कहाँ पे आएगा? मेनली बिजनेस एनालिस्ट वहां आएगा जहां पे वो इस चीज को समझेगा क्लाइंट से कि चाहिए क्या आपको, आपको आपको कितनी चीज चाहिए। आप, क्या हम आपको एक चेयर लगा के दें उस पे, आपको उस जो है झूला लगा रहे हो उस पे झूलना भी है? सबसे पहला क्वेश्चन तो वही पूछेगा उससे कि क्या आपको करना क्या है उस झूले का, आपने उस झूले पे बैठ के झूलना है या उसको रखना है जमीन में, जो आपकी डेवलपर ने पिक्चर बनाई है। ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि क्या कितना खर्चा है आपके पास, कितना बजट है आपके पास। ऐसा नहीं ना, जो आप अब थर्ड लास्ट फोटो देखो, उसमें भी झूला बना दिया है, दैट्स अ राइड। अगर आप थर्ड लास्ट देखोगे तो उसमें क्या आपके पास इतना, इससे नीचे वाली जो अगर आप देखो, विच इज योर, हाँ, थर्ड लास्ट, तो दैट ऑल्सो इज झूला अगर बोलो तो, है ना? गार्डन में झूला है, ट्रीज भी लगे हैं। क्या आपके पास इतना बजट है कि इतनी इस तरीके की राइड बनानी है? तो वो सब क्वेश्चन जो है ना, प्राइमरी क्वेश्चन, कि नहीं कितना बजट है, किस तरीके से है, क्या मैं एक टायर लगा दूं एक ट्री पे और उसको झूला बना दूं, या एक बेंच का फट्टा लगा के, जो हम बोलते हैं फट्टा, या आप बोलते हो उसको एक प्लेन स्लेज ऑफ वुड, क्या उसको लगा के एक ट्री पे एक अच्छी हाइट के ऊपर बच्चों के झूलने के लिए, अगर वो चीज भी काम आ जाए, तो क्या आपको आपकी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल होती है? तो ये सब क्वेश्चन कौन होता है? ये सब क्वेश्चन पूछता है बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि वो उसकी नॉलेज ये मानी जाती है कि वो जाके क्लाइंट से क्रॉस क्वेश्चन करेगा, कि जब क्लाइंट बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, तो वो पूछेगा ये चाहिए, कब तक चाहिए, कितना पैसा है आपके पास, बजट क्या है आपका, किस तरीके से चाहिए, कितना इजी चाहिए, कितना मुश्किल चाहिए, और क्या क्या चीजें और ऐड होनी चाहिए। और जब ये सब चीजों को क्लैरिटी आ जाएगी, वो जाएगा, वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा। अब डॉक्यूमेंट भी बहुत सारी चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट करने की। आजकल जीरा एक सॉफ्टवेयर टूल आया है, कॉन्फ्लुएंस है, जो आप लोग सुनते रहते होंगे मार्केट में। आप अब वो एजाइल वे से हम लोग उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। पहले जब हम लोगों ने करियर स्टार्ट किया था, मैंने करियर स्टार्ट किया था, तब उस टाइम पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम लोग बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बीआरएस बनाते थे। उसमें सब चीज ये लिखते थे बीआरडी, कि बीआरडी में होगा क्या, कि क्या चाहिए क्लाइंट को, अभी क्या स्टेज है, अभी वहां पे कोई झूला नहीं है, गार्डन है, पेड़ है, चाहिए क्या उसको, बिजनेस को एक्चुअली, कितना बजट है, कितने टाइम तक इस प्रोजेक्ट को करके देना है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या क्या चीजें उसमें हमें होनी चाहिए, जो मस्ट हैव चीजें हैं, ये तो होनी ही चाहिए, एक रोप होनी चाहिए, एक बैठने की जगह होनी चाहिए, वो सब चीज होनी चाहिए। वो सब हमने मैंडेटरी चीजें भी बता दी कस्टमर को, ये अपना लिख दिया वो कस्टमर। फिर जाके हम वो वापस कस्टमर के पास जाते थे और कस्टमर को बोलते थे कि अब आप चेक करके बताओ, इस डॉक्यूमेंट में बीआरडी को पढ़ो, और आज के टाइम में हम जीरा बनाते हैं, कि जीरा को देखो, अब बताओ आपको सही लग रहा है या नहीं। और बहुत सारे केसेस में हम मॉकअप स्क्रीन्स भी बनाते हैं। मॉकअप स्क्रीन क्या होती है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, लास्ट पिक्चर है, तो एक एक डिजाइन, एक बहुत बेसिक सी स्क्रीन, कि ये ऐसा दिखेगा जब बनेगा, तो वो प्रोटोटाइप होता है, मतलब
वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता, बस बिल्कुल एक पिक्चर बना के दिखा दिया आपने टूल पे कि ऐसा ऐसा दिखेगा। तो जब वो बन गया, उसके बाद अब वो बिजनेस एनालिस्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा अपनी टीम के पास। उसकी टीम कौन है? अगर डेटा एनालिसिस की का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो डेटा एनालिस्ट हो गए। अगर वो एक डेवलपमेंट का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डेवलपर्स की टीम हो गई। ठीक है, अगर कुछ कोडिंग का काम है तो सॉफ्टवेयर कोडर्स या डेवलपर्स अगेन वही टीम हो गई। उनके साथ बैठेगा, टेस्टर्स के साथ बैठेगा, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए, कितने टाइम चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मस्ट हैव क्या है, क्या चीजें हम रखेंगे तो अच्छी है, गुड टू हैव, और क्या चीजें ऐसी हैं जो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे चेयर लगाना इग्नोर कर सकते हैं इस केस में, सोफा लगाना इग्नोर कर सकते हैं इस केस में, वो जरूरत नहीं है क्लाइंट की। तो ये चीजों को वो एक्सप्लेन करेगा अच्छे से, फिर टीम को देगा। जब टीम उस पर काम करेगी, डेवलपर उस चीज को बनाएगा, सॉफ्टवेयर कोडर डेवलपमेंट करेगा उस पर, उसके बाद वो जाएगा टेस्टर के पास। टेस्टर अपनी टेस्टिंग करेगा, अपने फेजेस, जो आपकी यूनिट टेस्टिंग हो गई, आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग्स हो गई, और उसके बाद टेस्टर वापस आएगा बिजनेस एनालिस्ट के पास कि आप अब देखो ये प्रोडक्ट बन गया है, क्या ये प्रोडक्ट सही लग रहा है क्लाइंट के हिसाब से। तो एक लेवल ऑफ यूजर टेस्टिंग बिजनेस एनालिस्ट करेगा, और वो वापस अपने क्लाइंट को एक डेमो देगा कि ये हम हमारी टीम ने प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बना दिया है, अब आप बताइए आपको सही है, ग्री, ओके, नॉट ओके। और फीडबैक लेगा उसके ऊपर, अगर कुछ फीडबैक है वो फीडबैक को वापस से उस पर काम किया जाएगा। तो बहुत ओवरऑल बहुत हाई लेवल से बता रहा हूँ। जब अगर आप लोग और डिटेल में घुसोगे इस बिजनेस एनालिसिस के कोर्स में, तो एक एक चीज के ऊपर फोकस आता है कि कैसे रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, कैसे बीआरडी बनेगी, कैसे टेस्टिंग होगी, क्या यूजर एक्सेप्टेंस होगा, फिर कैसे हम फीडबैक कलेक्ट करेंगे, और कैसे उस चीज को वापस से हम इम्प्रोवाइज करेंगे। और तो ये सब हो गया, ये हमारा हो गया मेनली रिक्वायरमेंट क्या है। अब अब इन सब चीजों से बाहर आके मैं ये देखता हूँ, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। अ, तो उसके उसके ऊपर मैं आऊंगा। वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज राइट इट डाउन, कहीं पे लिख के रखिए, लास्ट में विल टेक, अजितेश मेंशन, विल टेक दोस क्वेश्चंस। अब देखिए बीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आइडली मैंने आपको बता दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रा कि क्यों उसको लेते हैं, वो क्या करेगा, हु पूछेगा, जो सिंपल सारा ये सारा जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, लास्ट के जो फ्लो चार्ट बना है उसको या चार्ट बना है उसको देखिए। वो क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में? हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। सिंपल क्वेश्चन जो हम वो एक झूले वाले केस में देख रहे थे। हु मतलब चाहिए किसके, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उस हिसाब से हम बनाएंगे। हु इज योर यूजर, एक्चुअल में यूज कौन करेगा उस प्रोडक्ट को या उस चीज को। व्हाट, चाहिए क्या तुमको, मतलब पहले में हमने बता दिया यूजर कौन है, कौन उसको यूज करने वाला है। दूसरे में चाहिए क्या, वेयर, कहाँ पे चाहिए। लाइक इस केस में गार्डन था, बट अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, जोमेटो वाला आपके लिए इजी एग्जांपल हो सकता है कोरिलेट करने के लिए आप सबके लिए। तो जोमेटो की कौन सी स्क्रीन पे, अगर आप देखोगे जोमेटो की स्क्रीन को याद करके देखिए अपने मोबाइल्स में, एक जगह होता है वो डिलीवरी, एक जगह होता है डाइन आउट, एक जगह होता है अपना जोमेटो गोल्ड का सेक्शन बना हुआ, फिर आपका आगे होता है सब्सक्रिप्शन या अकाउंट का। तो किधर आपको चाहिए ये चीज कि आप वाइन या आप कुछ ऐसे लिकर को ऑर्डर कर सकते हैं, तो कहाँ से करना है। ठीक है, वो आ जाएगा वेयर वाले फेज में आपका। वाई, चाहिए क्यों आपको, मतलब बिजनेस की नीड क्या है उसको लाने के लिए, वो बिजनेस एनालिस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाई डू यू नीड दिस, क्यों चाहिए आपको। तो जैसा वो लिकर वाला केस है वाइन शॉप से लाने का, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लाइसेंस है क्या। हम काम कर देंगे, हमारी टीम, आप हमारे क्लाइंट है जोमेटो, हमारी टीम आपके लिए काम कर देगी, ये स्क्रीन बना देगी, ये मोबाइल पे डेवलप कर देगी पेज जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, शॉप्स को लिस्ट भी कर देंगे, हम सब कर देंगे। बट अगर आपके लाइसेंस ही नहीं है तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे, आप बेच ही नहीं पाओगे उसको। तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप लास्ट में जाओगे, आप बोल दोगे कि हमारे को लाइसेंस नहीं मिला, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो प्रोजेक्ट को हम स्क्रैप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो हमारी पेमेंट्स का क्या होगा, किस तरीके से होगा प्रोजेक्ट, तो हमने हमने जो इतनी मेहनत की है वो सारी एफर्ट वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया वाई, चाहिए क्यों आपको, मतलब दैट्स द मेन क्वेश्चन कि आपको, ठीक है आप बोल रहे हो मुझे ये चाहिए, वो इंडिगो के केस में मुझे डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए भुवनेश्वर से बैंगलोर, पर चाहिए क्यों, क्या रीजन है, दिल्ली से भी तो लोग जा रहे हैं, कोलकाता से भी लोग जा रहे हैं, हैदराबाद के थ्रू भी लोग जा रहे हैं, तो डायरेक्ट फ्लाइट क्यों चाहिए आपको।
ऐसी क्या नीड है आपकी, वो व्हाई इज योर नीड, जो हर बिजनेस एनालिस्ट के थिंकिंग में, माइंड में होनी चाहिए। जब आप एक बिजनेस एनालिस्ट रोल पे जाते हो कि सबसे पहले क्वेश्चन करो उनको कि चाहिए क्यों, व्हाई, देन व्हेन, व्हेन इज योर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, बाय व्हेन, डेडलाइन आपकी, जो बोलते हैं ना हम बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, दिस इज द व्हेन फेज, कि बाय व्हेन डू यू नीड दिस, आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन कब तक करके देना है, हम आपको ये प्रोडक्ट कब तक बना के दें, दिस इज योर व्हेन, which is your project delivery deadline date. How, sorry, how is your, आप कैसे चाहते हैं बेसिकली, हाउ इज समथिंग विच बिजनेस एनालिस्ट, जो कि बिजनेस एनालिस्ट हमारा क्लाइंट से नहीं पूछेगा हाउ, वो पूछेगा जाके अपनी टीम से, अपने डेवलपर से, अपने क्यूए से, अपने आर्किटेक्ट से, कि हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट आई है, हम इसे कैसे आसानी से अच्छे से बना सकते हैं बिना किसी एरर्स के और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो ये हाउ जो है लास्ट का, वो बिजनेस एनालिस्ट अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है जाके वापस रिक्वायरमेंट ले जाने के बाद। और अगर आप ऊपर के उस पे देखोगे फ्लो, वो भी कुछ नहीं है, वो आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। नो द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, वही बात हो गई, आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट को गैदर किया, डॉक्यूमेंट किया आपने, वो डॉक्यूमेंट्स बना दिए बीआरडी या जीरा या कॉन्फ्रेंस, जो मैंने बता दिया आपको, एलोकेट रिसोर्सेज, अपनी टीम के साथ बैठा, किस तरीके की स्किल सेट चाहिए, अगर मोबाइल डेवलपमेंट है तो मोबाइल यूआई यूएक्स वाले डेवलपर्स चाहिए आपको वेबसाइट पे भी, या मोबाइल डेवलपर्स चाहिए, मोबाइल में एंड्रॉयड चाहिए, आईओएस डेवलपर्स चाहिए, किस तरीके का है, वो सब आपने फाइनलाइज कर लिया। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड कंडक्ट मीटिंग जब हो गया, तो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने टीम्स के साथ मीटिंग्स वगैरह रेगुलर पे प्रोग्रेस अपडेट देने के लिए मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल करेगा, और ट्रैक प्रोग्रेस अपनी टीम से पूछ के क्लाइंट को बताता रहेगा, हम इतना 30% कंप्लीट किया, 40 किया, 50 किया है। तो वो एक टिपिकल हमारा लाइफ साइकिल हो जाता है बिजनेस एनालिस्ट का, कि आप जैसे अगर बिजनेस एनालिस्ट आप में से कोई लोग शुरू करते हो, तो आप ये सारी चीजें करोगे। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हम सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है ये क्या चल रहा है, इतना काम कौन करता है, कैसे होगा, बट जब आप उस सिस्टम में घुस जाते हो ना, तो आपको पता है कि कैसे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप आगे मूव होगा, और आपको क्या क्या चीजें करनी है, वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट हो जाती है। वी कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब है मेन क्वेश्चन कि सबसे पहले, कैन आई बिकम अ बीए। अब आप में से बहुत लोग, जैसे आप लोगों ने बताया स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बोल रहे होंगे अरे इतनी इतनी बातें कर दी, हम कोई डेटा एनालिस्ट बनने आया था, कोई डेवलपर बनने आया था, कोई टेस्टर बनने आया था, ये अलग ही लेवल पे ले गए, बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ। क्या क्या मैं बन सकता हूँ बिजनेस में, मैं तो एमबीए नहीं हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ एमबीए नहीं हूँ मैं, तो क्या उसकी एमबीए इज प्री रिक्विजिट फॉर दैट? आंसर इज नो, इट्स नॉट अ प्री रिक्विजिट, बट इट इज गुड टू हैव। अगर आप एक एमबीए हो, तो आप क्या हो, आप ऑलरेडी एम, आप उस तरीके के मॉडल में आपकी थिंकिंग डली हुई है कि कैसे एक बिजनेस मॉडल काम करता है, कैसे उसको हम, बजट क्या होता है, पैसा एलोकेशन कैसा होता है उस चीज के ऊपर, किस तरीके से रिसोर्सेज लाए जाते हैं, वो सब, और बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं वो लोग एमबीए में, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, वो सब से आपको एक एडिशनल बेनिफिट होता है। अब अगर आप एमबीए नहीं हो, आप एक बीटेक हो, जो आप एक इंजीनियर हो, जो आप एज अ सपोर्ट एनालिस्ट काम कर रहे हो कहीं पे, या कहीं पे आप बहुत छोटे छोटे से काम कर रहे हो, वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, क्या आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो। मेन बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए हमें चाहिए क्या, बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए हमें एक, ना तो हमें कोडिंग, कोडिंग भी हमें नहीं चाहिए, मतलब क्लियर एक एग्जांपल आपको मैं आंसर देता हूँ, हमें कोडिंग बिल्कुल नहीं चाहिए बिजनेस एनालिस्ट के लिए, क्योंकि एज अ बिजनेस एनालिस्ट मेरे पास कोडिंग डेवलपर्स की टीम है जो कोडिंग करेगी। पर हाँ, मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं समझ सकूं कि उन्होंने क्या बनाया है। अब मैं समझूंगा कैसे, डिजाइन के थ्रू। ये नहीं उनकी कोड की लाइंस को पढ़ के मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को तो, मैं तो कोड की लाइन कोडिंग कर नहीं सकता, ना मैं समझ सकता हूँ कोड में लिखा गया है। पर मैं, जब वो आपको डेमो देगा एक डेवलपर कि मैंने ये चीज बनाई है, मोबाइल की स्क्रीन पे आप देखोगे, आप सब लोग एक यूजर हो, आप सब, अगर आप अपने आप को देखो, आप सब लोग एक यूजर हो, आप एक यूजर टेस्टिंग आप हर रोज करते हो। जो मैंने आपको यूजर टेस्टिंग बोला था ना, कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो बाद में टेस्टर आपको एज अ बीए देता है कि तुम टेस्ट करके देखो कि सही चल रहा है क्या, हम क्लाइंट को डेमो देंगे। आप अगर अपनी लाइफ को देखो, आप एक मोबाइल फोन उठा लो, आप हर दिन, हर दिन में कितनी एप्स को आप टेस्ट कर रहे होते हो?
जो आप एक्चुअली में एज अ यूजर टेस्ट कर रहे हो। आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आप लोग फेसबुक यूज करते होंगे, यूट्यूब यूज करते होंगे, गूगल की एप्स यूज कर रहे हैं, आप लोग पेमेंट एप्स यूज कर रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे, XYZ, कितनी एप्स आप यूज कर रहे हो रोज के रोज के इसमें। और आप लोग हर रोज टेस्ट कर रहे हो। कहीं पे आप कह रहे हो कि यार यार आज पेमेंट नहीं चल रही, अरे यार आज इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहे हैं या रील अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रिफ्रेश नहीं हो रहा, मेरी रील अपलोड नहीं हो रही, मैं कोई लाइक कर रहा हूँ, लाइक नहीं हो रही, कमेंट कर रहा हूँ, कहीं पे कमेंट नहीं हो रहा। आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं हो रहा मीन्स क्या? वो सॉफ्टवेयर जिस तरीके से डिजाइंड है चलने के लिए वो नहीं चल रहा। आप एक रियल लाइफ के रियल टाइम यूजर्स हो, आप हर कोई। तो आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको यही तो चाहिए कि आपका जो थिंकिंग का थॉट प्रोसेस हो वो ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर इस कमेंट के बॉक्स पे क्लिक करके पोस्ट कमेंट कर रहा हूँ, ये पोस्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, या मैं किसी की फेसबुक की फोटो को लाइक कर रहा हूँ, थम्स अप के साइन को क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक होना चाहिए। वही तो आपका माइंड कह रहा है ना, एज अ बिजनेस, एज अ यूजर, एंड यूजर। तो अगर नहीं हो रहा तो होना चाहिए, और आपको ये भी पता है क्या होना चाहिए। तो ये एक थॉट प्रोसेस चाहिए बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। सबसे अच्छी बात यही है कि आप हर कोई अपने अपने फील्ड में यूनिक होता है। तो आप कहोगे कि डेवलपर डेवलप करेगा, बट आपको अगर सामने वाले की बात समझ आ रही है कि उसे चाहिए क्या रियल लाइफ में, तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट वैसे भी अपनी लाइफ में हो, डे टू डे एक्टिविटीज पे। एक शॉपकीपर बिजनेस एनालिस्ट है, क्योंकि वो समझ रहा है आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे को एक पिज्जा चाहिए, उस पर टॉपिंग ऐसी चाहिए, कस्टमाइज करके मांग रहे हो आप पिज्जा को। तो वो क्या कर रहा है? वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझ रहा है कि आपको मिर्च नहीं चाहिए, आपको ऑलिव ज्यादा चाहिए, आपको पिकल चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, कैप्सिकम डालना है, आप लोग नॉन वेज हो तो चिकन चाहिए, या अ, आपको चिकन बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मोजरेला चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? वो सामने जो बैठ खड़ा है आपके, वो आपकी रिक्वायरमेंट ही तो समझ रहा है। और ये रिक्वायरमेंट समझना हमारे अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग करते हैं। तो इसलिए हम हर कोई एक बिजनेस एनालिस्ट की तरफ बन सकता है। अब आप बोलोगे इतना आसान है बिजनेस एनालिस्ट बनना, तो अपॉर्चुनिटीज क्या है? भी कुछ अपॉर्चुनिटीज या फालतू टाइम पास ही हो रहा है कि कुछ है ही नहीं अपॉर्चुनिटी? अब क्या है ना, देखो, हर की आजकल की लाइफ में एक टिपिकल स्किल के पीछे भागता है, बट एक बिजनेस एनालिस्ट की जो स्किल है ना, वो एक माइंड के थ्रू चलती है आपके। उसके लिए आपको माइंड में समझना, बस एक थॉट प्रोसेस बनाने की जरूरत है कि आप सीखो कि थॉट प्रोसेस कैसे बनेगा। जब आपका वो थॉट प्रोसेस बनाने का माइंड सेट हो गया, तो आप धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पिक करो और डिलीवर करोगे। और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो कि, अपने माइंड को ही ट्रेन करना है। दैट्स अ ट्रेन योर ब्रेन वाली फंडा है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। और अपॉर्चुनिटीज आपकी, आप एक आईटी कंपनी पकड़ लो। आईटी कंपनीज में अब सबसे पहले मैं आपको सेक्टर बताता हूँ। अब आपके सेक्टर, अब एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? बिजनेस एनालिस्ट आपका बैंकिंग में जा सकता है, बिजनेस एनालिस्ट आपका किसी भी डोमेन में। आप देखो एफएमसीजी, एफएमसीजी कंपनीज होती हैं जो कि आपकी, आपको पता होंगे, ये जैसा यूनिलीवर हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा बेवरेजेस, पामोलिव, बहुत सारी हैं। आप उठा के देखोगे, पतंजलि, दीज ऑल आर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, जो हम डे टू डे चीजें लेते हैं। उनकी कंपनीज होती हैं, उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं आईटी कंपनीज के पास, बड़े बड़े। आप लोगों को हैरानी होगी समझ के कि पतंजलि के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जो उनकी वेबसाइट्स होती हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे एनालिसिस होती है। इन्फोसिस, टीसीएस, इनके पास जाता है। एयरलाइन डोमेन, जो आईटी कंपनीज, उनके बहुत बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं। एयरलाइन डोमेन, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपके, सब में आईटी चाहिए। अगर आप देखो आज के जमाने में तो आईटी चाहिए ही चाहिए हर जगह। ठीक है, सबके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, सबकी एप्स बन रही हैं। बैंकिंग, जो बिगेस्ट, जहाँ पे सबसे बड़े स्केल पे बिजनेस एनालिस्ट हायर होते हैं। और बैंकिंग के अंदर भी आपकी बहुत सारी, जैसे मैंने बताया था, एंटिटीज होती हैं अलग अलग। एक रिटेल में जो आप ब्रांच में जाते हो, आपका आप कैश जमा करते हो, निकालते हो, डिपॉजिट, क्रेडिट, डेबिट, उसके बैंक होते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जीरोधा, आप लोगों में से बहुत लोग यूज करते होंगे, ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग करते होंगे, उनकी एप्स बन रही हैं। आप शेयर खरीद रहे हो, आपको एलोकेशन हो रही है, पैसा आप सेल कर रहे हो, आपको सेटलमेंट आ रहा है, आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, ट्रांजैक्शनल चीजों पे, गूगल पे, पेटीएम, हर जगह आपको एक बिजनेस एनालिस्ट की जॉब्स निकलती हुई दिखेंगी। आप गूगल करो बिजनेस एनालिस्ट, लिखो गूगल पे जॉब्स इन बिजनेस एनालिस्ट, आपको हजारों लाखों जॉब्स आएंगी। और इसका स्कोप एक इतना अच्छा चीज है बिजनेस एनालिस्ट की, कि बिजनेस एनालिसिस में आप एक ही जगह अटक के नहीं रह जाते।
आपको क्या है, आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, तो लेट सपोज किसी कंट्री में उस स्किल की, जिस स्किल पे आप बिजनेस एनालिसिस करते हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो आप आपको प्रोजेक्ट्स पे मूवमेंट्स मिलती हैं कि आप कुछ दिन कुछ ईयर्स उस कंट्री में रह लो। और वैसे भी फ्रिक्वेंटली अगर आप एक ट्रेंड देखोगे आईटी कंपनीज में, बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जिसके 90% चांसेस होते हैं बाहर जाने के। मतलब अभी तक का जो मैंने भी ट्रेंड देखा है, सबसे पहले जो जाता है ना, कोई क्लाइंट से उसको ही बात करनी है। डेवलपर टेस्टर तो बाद में आते हैं जब वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो बहुत बार जब प्रोजेक्ट के लिए पिच करने जाती है ना कंपनीज, वो अपने बिजनेस एनालिस्ट भी लेके जाती हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए कि उनकी स्पेशलाइजेशन क्या कहाँ है। तो बिजनेस एनालिस्ट को फर्स्ट एडवांटेज हमेशा रहता है। वो ना पीएम को रहेगा, ना एक स्क्रम मास्टर को रहेगा, ना एक डेवलपर टेस्टर को रहेगा। जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो लोग जब टीम, आपके टीम लीड्स भी नहीं बोलूंगा, आपके जो बिजनेस डेव लीड्स वगैरह जाते हैं, सीनियर लेवल के मैनेजमेंट के लोग जाते हैं, उसके बाद बहुत बार देखा गया है फ्रिक्वेंटली बिजनेस एनालिस्ट ट्रेवल करते हैं बाहर। अब थर्ड थिंग, क्या चीजें होती हैं जो आपको एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं। तो अब मैं उधर वापस आता हूँ। आप कैसे बन सकते हो, मेनली आप बिजनेस एनालिस्ट बनोगे कैसे? सबसे पहले तो रिज्यूमे, आप अपने रिज्यूमे पे काम करोगे, है ना? और आप देखोगे आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है। किसी ने काम, देर आर सम पीपल जो कि होम मेकर बन जाती है। देर आर गुड अमाउंट ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री जो कि, जब क्या होता है कि बहुत बार शादी के बाद और बहुत बार जब उनके पास उनके किड्स हो जाते हैं, तो वो लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, बट वो उससे पहले वो कहीं पे काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो उस फील्ड से छोड़ देते हैं जॉब, बट उनकी उस फील्ड की नॉलेज होती है। पर अब वो टेक्निकल चीजें इतनी बढ़ चुकी होती हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, वो सोचते हैं कि नहीं यार, अब तो एआई आ गया, मैं क्या करूंगी वो। बट क्योंकि आपको उसका पूरा कोर पता है, तो आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं। बहुत सारे रिटेल में जो आपको लोग होते हैं जो रिटेल बैंकिंग में काम कर रहे हैं, वो लोग अपने जॉब को ट्रांजिशन कर सकते हैं। बहुत आप लोग जो है सेल्स की तरह काम कर रहे हैं, वो आप सेल्स के, बिकॉज आप उस चीज की, प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, आपको उसका इन एंड आउट पता है, तो आप ट्रांजिशन कर सकते हो। अब अब दूसरा स्किल्स हो गए, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, प्रोजेक्ट यूएमएल डिजाइन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स, एसडीएलसी मेथड, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेसिक्स ऑफ आईटी एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट रोल। so these all are बेसिकली कैसे आप एक अच्छा बीए बन सकते हो। पर अगर मैं अभी आपको ये समझाना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये दैट वुड नॉट डू जस्टिस इसमें, बिकॉज बहुत सारी चीजों के लिए, इन सबके लिए अपने अपने एक सेशंस बने हुए हैं जो कि डिटेल में बताता है कि करना क्या है उसको। अब यूएमएल डिजाइन के ऊपर अगर आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, यूएमएल पे बहुत सारी तरीके की चीजें होती है। यूएमएल इज, आप कैसे वो मॉक स्क्रीन जैसा मैं बता रहा था, वो रिक्वायरमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे अपनी टीम में और क्लाइंट को, ताकि दोनों को समझ आ जाए वो चीज। किसी के लिए भी वो एग्नोस्टिक हो जाए, क्योंकि डेवलपर आपका टेक्निकल बंदा है, क्लाइंट आपका बिजनेस का बंदा है, तो आपको ऐसा प्रेजेंट करना है उस चीज को, जो रिक्वायरमेंट है, कि दोनों को समझ आए कि करना क्या चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट जो डे टू डे पे यूज करता है। बट आप लोगों के लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज ये एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन का सेशन है कि बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है। अब अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूं, अब आप में से काफी लोग जो हैं वो डेटा एनालिसिस के स्टूडेंट हैं अभी टैलेंटली में। तो आप लोग सोचोगे कि मैं तो, ये बिल्कुल मेरा रोल में कैसे बैठेगा बिजनेस एनालिस्ट। तो अब जैसे आप लोग ये टूल्स सीख रहे हैं, ये आपको एक एडिड एडवांटेज देता है बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। जैसे मैंने बोला कि एक डेवलपर होता है, डेवलप अगर कोई बिजनेस एनालिस्ट जिसको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी समझ आता है, तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। अब जो डेवलपर कर रहा है वो 2 मिनट में बता देगा तू सही कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर डेटा एनालिटिक्स की वर्ल्ड में कोई ऐसा बिजनेस एनालिस्ट है जो डेटा एनालिसिस के टूल्स को भी जानता है, बीआई के टूल्स को, कि करते कैसे हैं, हम डेटा फेच कैसे कर रहे हैं, उसको माइनिंग कैसे कर रहे हैं, डेटा दिखा कैसे रहे हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाना है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा या जो वो प्रेजेंट करेगा क्लाइंट को, वो और अच्छा होगा। क्योंकि वो अपने डेटा एनालिस्ट की जो टीम है उसको भी अपना इनपुट्स देगा कि तुम इसको ऐसा दिखाओ, इसको ऐसा दिखाओ, ऐसा फेच करो डेटा को, ये वाला फील्ड नहीं यूज करना चाहिए, तुम्हें दूसरे फील्ड को यूज करके ज्यादा हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स वर्ल्ड में भी बिजनेस एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली में जाकर डेटा माइनिंग करेगा और डेटा को लेके आएगा, उस इंफॉर्मेशन जो डेटा डंप आएगा उसमें से एक मीनिंगफुल डेटा निकाल के लाएगा। बट वो मीनिंगफुल है या नहीं है, वो काम डेटा एनालिस्ट नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए वो सिर्फ एक डेटा है, उसका डैशबोर्ड है।
वो बताएगा उस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ बिजनेस एनालिस्ट कि जो तुमने डेटा बनाया है या डैशबोर्ड बनाया है ये काम का भी है या नहीं है, तो हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं जिससे वो क्लाइंट के काम का बने। और स्टार्टिंग में भी जो इस डेटा को लाने का जब रिक्वायरमेंट आएगा, वो रिक्वायरमेंट भी डिस्कस करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट ही जाएगा क्लाइंट के पास। वही समझेगा, वही बताएगा कि करना क्या है, क्या चीज उसको चाह रहा है, क्योंकि हर डेटा जो आप डेटा एनालिसिस में या एनालिटिक्स में जो डेटा निकाल रहे हो ना, अगर आप सोचो उसका कुछ ना कुछ बिजनेस यूजेज है, अदरवाइज वो डेटा किसी काम का नहीं है अगर बिजनेस यूसेज है ही नहीं। तो सबसे पहले समझना ये है कि उसका बिजनेस यूसेज क्या है। जैसा वो मैंने इंडिगो वाला बताया था कि डेटा निकालना है हमें, कि बैंगलोर कनेक्टिंग फ्लाइट्स का डेटा निकाल रहे हैं, पर निकाल क्यों रहे हैं? डेटा एनालिस्ट तो बैठ के अपनी स्किल्स को यूज करके डेटा निकाल देगा, पर करना क्या है उस डेटा का, वो पता करने के लिए एक आपको बिजनेस एनालिस्ट अगर आप हो, तो आप उस पर ज्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे उस रोल में। डू वी हैव अनदर स्लाइड आल्सो? क्या? नहीं, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं बिजनेस एनालिस्ट के। आप किसी सेक्टर को उठा लो, हर जगह आपको बिजनेस एनालिस्ट मिलेगा, हर जगह आपको उसकी। और एक फन फैक्ट भी बताऊंगा आप लोगों को। अ, आप सैलरीज भी, आप लोग काफी लोग ग्लासडोर यूज करते होंगे एप्लीकेशंस। इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गया, कभी जाके बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी देखना। आपका डेटा एनालिस्ट, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर, नॉट डेटा एनालिस्ट स्पेसिफिकली बट सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर, जो आपके पैकेज के रेंज होते हैं ना, जो बिजनेस एनालिस्ट का जो रेंज होता है ना, वो उनसे ऑलरेडी बहुत हाई होता है उसका। और प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सैलरी रेंज रहेगा वो नियर नियर रहेगा, आसपास रहेगा। बट जो सॉफ्टवेयर डेवलपर या टेस्टर का जो सैलरी होगा और बिजनेस एनालिस्ट का होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये आप लोग आपके आसपास में जो फ्रेंड्स होंगे या कुछ रिलेटिव्स होंगे, जो लोग डेवलपर होंगे या उनकी कंपनीज में बीए होगा, तो तो उनसे भी पूछोगे तो वो लोग यही बोलेंगे कि हाँ यार। और हर किसी को ना आज की दुनिया में, ये भी मैं आपको एक बताता हूँ, जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोगों से, जो लोग ऑलरेडी आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनसे बात करोगे ना आप एज अ स्टूडेंट से, आप जो लोग हैं, हर किसी को बिजनेस एनालिस्ट बनना होता है, या लीड बनेगा बंदा, या बोलेगा बिजनेस एनालिस्ट बन जाए तो फायदा है। फायदा इसलिए क्योंकि एक तो सैलरी रेंज बढ़ जाता है, एक्सपोजर बढ़ जाता है, आप जिस लेवल पे जिस लोगों के साथ काम करते हो वो आप सीनियर मैनेजमेंट के साथ काम करने लग जाते हो डायरेक्टली। प्लस थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स ट्रैवल, आपको ट्रैवल करने को भी मिलता है। दैट्स इट। मतलब आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू दिस सेशन। Yes, yes. आप It was अगर कोई really क्वेश्चंस। insightful actually. थैंक यू, Okay, थैंक so यू we वेरी got मच। to know, I mean, way more than मतलब हम लोग को जितना मालूम नहीं था. So you came and added some of our, बहुत कुछ आपने ऐड किया, and thank you for the wonderful session. And guys, any question from any one of them, please feel free to ask. किसी का कोई भी डाउट है, please unmute yourself and make the class interactive, please. एनी एनी क्वेश्चन? एक सिंपल फंडा, कोई क्वेश्चन खराब क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को सुन रहे हो। तो अगर ये भी है ना कि इसका नाम बीए बीए क्यों लिख रहे हैं, बिजनेस एनालिस्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो भी एक वैलिड क्वेश्चन है। तो कोई भी तरीके का क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, दैट्स नॉट अ कि कोई ये बोलेगा कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। फील फ्री, जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना इजी आपको लिए रहेगा समझना। सर वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है सर बिजनेस एनालिस्ट में? अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस इज, बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है ना, आपके प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के फेज में ज्यादा बिजी रहता है। जब मैंने बताया क्लाइंट से डिस्कस करने में, वो क्लाइंट से डिस्कस करेगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, तब तक डेवलपर टेस्टर कुछ नहीं कर रहा है। वो तब तक उनको पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या है, या जब वो लोग वेट कर रहे हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट्स लिखी जाएंगी, साइन ऑफ, जो जो रिक्वायरमेंट्स फाइनल हो जाएंगी तब हमारे पास आएंगी। तो पहले फेज में अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का देखते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट वाला फेज होता है उसमें वो बिजी रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, उसका काम कम हो जाएगा, कोई डेवलपर और टेस्टर आएगा, वो बहुत मिनिमम मिनिमम चीजों में एंगेज रहेगा, बस सिर्फ थोड़ा बहुत कभी कभी रिव्यू कर लिया, बैठ गया। ठीक है, तो वहां उसका काम हल्का हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा काम फिर से आएगा जब लास्ट में जाके आप वापस से क्लाइंट को एंड प्रोडक्ट दिखाओगे। और अगर आप ऐसे स्पेसिफिकली वर्क लाइफ बैलेंस देख रहे हो तो इट्स सेम, मतलब आई वुड से, बिकॉज ये जो है ये फ्रंट रनिंग टाइप का जॉब है। तो इसमें आपको ऐसा सच कुछ नहीं है कि आपके बग आएगा, आपका बग नहीं आएगा। इसमें क्या है, आपने रिक्वायरमेंट एक बार कैप्चर कर ली, समझ लिया, लिख दिया, काम खत्म आपका। तो आई वुड सी इट इज, मतलब
खराब तो डेफिनेटली नहीं होगा, अच्छा ही होता है इन कंपैरिजन टू डेवलपर। तो वी हैव लॉट ऑफ पीपल लाइक शंकर सर एंड ऑल हु हैव बीन वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, बट वो बिजनेस एनालिस्ट नहीं थे, तो दे कैन कमेंट के उनका लाइफ कैसा था। बट आई वुड से कि कंपैरेटिव टू अ टेस्टर एंड डेवलपर इक्वल या अच्छा रहेगा, उससे बुरा तो नहीं होता डेफिनेटली। और कुछ क्वेश्चंस गाइस, मैंने और प्रशांत सर ने एक्सेंचर और स्विस बैंक में काम किया है साथ में, एक ही टीम में। सो ही वाज द बिजनेस एनालिस्ट, सी आई वाज इनटू डेटा एंड आई वाज इनटू टेस्ट ऑटोमेशन। सो उनसे रिक्वायरमेंट आता था, हम लोग काम करते थे, तो वी वेर कलीग्स इन द प्रोजेक्ट। सो आपको और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, इसमें डेवलपमेंट टीम का कब इंटरेक्ट होता है? डेवलपमेंट टीम का डेवलपमेंट, मतलब बिजनेस एनालिस्ट डेवलपमेंट टीम से कब इंटरेक्ट करता है, राइट? हाँ ये पूछ रहे राइट, हैं आप? हाँ हाँ, तो जब ये रिक्वायरमेंट क्लाइंट के साथ फाइनल कर लेता है, अपने डॉक्यूमेंट बना लेता है या जीरा पे जीरा की स्टोरीज लिख लेता है, उसके बाद वो डेवलपमेंट टीम के पास जाता है, उसको वॉक थ्रू देता है कि ये चीज क्लाइंट को चाहिए, और तब डेवलपमेंट टीम का एक इंटरेक्शन उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है। जो आप बोलते हैं ना एस डी, अगर अब तो एजाइल हो गया, बट वैसे एस डी एल सी में अगर आप देखते थे, मतलब एस डी एल सी अभी भी वही रहेगा। तो रिक्वायरमेंट के जो डेवलपमेंट डिजाइन वाला फेज है ना, वहाँ पे डेवलपर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं डिस्कस करने, और उसके बाद वो डेवलपमेंट करते हैं। तो आप बोलो कि अगर एक टिपिकल एक, मैं बोलता हूँ कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो पहला महीना फर्स्ट मंथ इज हैवी ऑन बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि उसको सब कुछ इंटरेक्शन करके डॉक्यूमेंटेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा डेवलपर्स और टेस्टर्स के साथ। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? Guys, any other questions? सर किसी का कोई भी बी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर जी, बी शिवानी। और डीए को टेस्टिंग की समझ होनी चाहिए या नहीं? बीए एंड डेव, डीए बीए को टेस्टिंग की समझ होनी चाहिए। मतलब होनी चाहिए का मतलब ये है कि उसको ये नहीं देखना कि किस टूल से वो टेस्टिंग कर रहा है, ऑटोमेशन कर रहा है टेस्टर। वो अगर वो सिलेनियम पे कर रहा है, टॉस्का पे कर रहा है, जो ये टूल्स आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग है, उससे उसको बिजनेस एनालिस्ट को कोई मतलब नहीं है। ऑटोमेशन किस तरह से अचीव कर रहा है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इंटरफेस लेवल टेस्टिंग की टेस्ट कर क्या रहे हो, ये जो फंक्शनैलिटी बनाई है वो चल रही है या नहीं चल रही है, उतना उसको समझ आना चाहिए कि हाँ, कि वो अपने आप से जाके, जो मैंने आपको बताया, आप लोग खुद एक यूजर्स हैं मोबाइल एप्स के, तो उस तरीके से एज अ एंड यूजर वो टेस्ट करना आना चाहिए, जो आई सपोज सबको आता ही है आज के जमाने में। कि अगर कुछ हम बना रहे हैं उसको, अगर वो फंक्शनैलिटी लिख रहा है, लेट सपोज आप अकाउंट में भी जाते हैं, अपने विड्रॉ कर रहे हैं, एटीएम कार्ड डाल रहे हैं, तो पिन गलत है और फिर जाके विड्रॉ हो गया तब भी, तो उतना समझ एक बिजनेस एनालिस्ट जब वो रिक्वायरमेंट लिख रहा है, उसने इतना बताया कि अगर पिन गलत है तो वो पैसा बाहर नहीं आना चाहिए, आपका कैश बाहर नहीं, विड्रॉ नहीं करना चाहिए मशीन, आपको दूसरा चांस देना चाहिए, तीसरी चांस दिया तो लॉक हो जाना चाहिए। वो सब उस लेवल की टेस्टिंग बिजनेस एनालिस्ट लास्ट में जाके करता है, जो एक्चुअल यूजर की को इम्पैक्ट करेगी टेस्टिंग, जो एक्चुअल जाके जब कस्टमर्स को इम्पैक्ट करेगी, वो टेस्टिंग बिजनेस एनालिस्ट करता है। बट ऑटोमेशन कैसे अचीव हो रही है, कितने परसेंटेज, परफॉर्मेंस क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, वो सब जो एक्चुअल टेस्टिंग के जार्गन्स रहते हैं, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता है, उसे एंड प्रोडक्ट से मतलब होता है। सर और एक क्वेश्चन था हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गो सर। अहेड। डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट को रिपोर्ट करेगा? देखो इसमें रिपोर्ट क्या होता है ना, रिपोर्ट इज फंक्शनली यस, बट ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का अलग एक हायरार्की होता है। मे बी बहुत सारी कंपनीज में आप डेटा एनालिस्ट जो है वो डेटा एनालिस्ट लीड को रिपोर्ट कर रहे हैं, और बिजनेस एनालिस्ट अलग से पैरेलली काम कर रहा है लीड के साथ। ठीक है, ये भी होता है। पर फंक्शनल जब आप एक एजाइल टीम में काम करते हो, तो इसका आंसर यस हो जाता है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट क्या है, रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है, वो काम करा रहा है अपने डेटा एनालिस्ट के साथ बैठ के। तो डेटा एनालिस्ट जो भी प्रोग्रेस कर रहा है वो बिजनेस एनालिस्ट को बताएगा, तो फंक्शनल रिपोर्टिंग का आंसर होता है यस। डायरेक्ट रिपोर्टिंग डिपेंड करता है कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है। बट हाँ, Yes, अगर आप रोल वाइज देखो तो रोल वाइज थोड़ा सा उसका बीए का रोल थोड़ा ऊपर आता है।
Tara has any doubt? Tara, please. एक क्वेश्चन और एक है, हाँ जी। बेसिकली एक कंपनी में प्रोजेक्ट्स आता है तो हम्म। वो क्लाइंट कैसे बिजनेस एनालिस्ट को ही अप्रोच करते हैं, तो उस रिगार्डिंग हम लोग कैसे काम करते हैं बिजनेस एनालिस्ट? सॉरी, आप मतलब मेरे को एक क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर देखो करेंगे, आप अभी क्वेश्चन मैं पूछना क्या चाहते प्रशांत हैं? प्रशांत सर आप मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट को हम लोग डोमेन एक्सपर्ट भी बोलते हैं, बिकॉज बिल्कुल। लेट्स से आप सोचो कि इन्फोसिस के पास एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, लेट्स से सिटी बैंक का प्रोजेक्ट है, ठीक है। हम्म। तो इन्फोसिस का जो टीम है गाइज, उनको ना लेट्स से इन्फोसिस में डेवलपर और टेस्टर डेवलपमेंट और टेस्टिंग के टीम भरे हुए हैं, बट दीज पीपल डू नॉट नो बिजनेस, राइट। बिजनेस मतलब बैंकिंग बिजनेस कैसे चल रहा है अभी मैं थोड़ी ना बता पाऊंगा। एंड टू एंड मतलब पूरा बैंकिंग में हर एक रिटेल बैंकिंग में पूरा कैसे चल रहा है, डिपॉजिट कैसे चल रहा है, चेक क्लियरेंस कैसे हो रहा है, और लोन्स कैसे, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स दे आर ऑफरिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स दे आर ऑफरिंग, या कोई इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम कैसे भरा जाता है, ठीक है, उनको क्लेम कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, सम इंश्योर्ड कैसे कैलकुलेट होता है, ये मुझे थोड़ी ना पता रहेगा, या इन्फोसिस के कोई डेवलपर या टेस्टर को थोड़ी ना पता रहेगा। ये जो बिजनेस की नॉलेज है बेसिकली, जो ऑलरेडी वो डोमेन में काम किया होगा 4-5 साल, उसको अच्छे तरह से पता हुआ होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बीए हायर करते हैं इंश्योरेंस डोमेन का, जेनरिक बीए, तो कभी कभार जेनरिक बीए हायर हायर करते हैं, कभी कभी डोमेन स्पेसिफिक बीए हायर करते हैं, ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक बीए हायर करने के बाद ये जो बंदा आया वो जाके क्लाइंट के साथ बात करेगा, क्योंकि ये बिजनेस समझता है, ठीक है। अब अभी अगर कोई बैंक में काम किया होगा, रिटेल बैंकिंग में 3-4 साल काम किया होगा, उसको ना बैंकिंग अच्छी तरह से समझ में आता है, ठीक है। वो क्या करेगा, क्लाइंट के साथ बात करेगा, टीसीएस उसको ही सामने बिठाएगा कि हाँ आप जाके क्लाइंट के साथ बात करो, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो रिटेल बैंकिंग सॉफ्टवेयर में क्या डेवलप डेवलप करना है, कितने स्क्रीन चाहिए, क्या क्या डिपॉजिट अकाउंट्स वो लोग ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या लोन अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं, चेक वगैरह क्लियरेंस क्या है, एटीएम उनको मतलब लॉन्च करना है कि नहीं, मतलब एटीएम सर्विसेज देना है कि नहीं, फोन बैंकिंग करना है कि नहीं, इंटरनेट बैंकिंग करना है कि नहीं। तो ये सब चीजें ना पहले बिजनेस एनालिस्ट समझता है उनसे, क्योंकि इसको समझ है थोड़ा बहुत बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करता है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जो सर ने बोला कि बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये या बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करने के बाद वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया जाता है डेव टीम और टेस्टिंग को, टेस्टिंग टीम डेवलपमेंट टीम को हायर किया जाता है। अगर डेटा एनालिटिक्स का भी समझ लो, डेटा एनालिटिक्स में पहले हम लोग बिजनेस का प्रॉब्लम समझेंगे ना, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सपोज उबर भुवनेश्वर इज नॉट डूइंग वेल, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है उबर भुवनेश्वर, तो पहले बिजनेस एनालिस्ट समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाए, डेटा पहले उनको मतलब मतलब डेटा सोर्सेस या रिसोर्सेस पता चल गया कि कहाँ से डेटा उठाना है, ठीक है। क्या क्या अचीव, आप व्हाट यू वांट टू अचीव इन दैट डैशबोर्ड, हमें क्या डेटा एनालिसिस करना है, ठीक है। कॉम्पिटिटर का डेटा हो सकता है, आपका उबर का लोकल जो जितने सारे कैब सर्विसेज है उनका डेटा हो सकता है, ट्रिप्स का डेटा हो सकता है, ये बिजनेस एनालिस्ट पूरा समझेगा और आप लोग को बताएगा कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, ये डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड बनाने के बाद फिर आप बीए के पास जाओ कि देखो सर हमने बना लिया ये, आप अभी बताओ ये वेदर इट इज इन वेदर दिस इन डैशबोर्ड इज इंसाइटफुल और नॉट, और डू वी नीड टू मेक एनी चेंजेस बिफोर डिलीवरिंग इट टू द क्लाइंट। एंड गोल ये है कि भाई क्लाइंट को दिया जाए, क्लाइंट को वो आंसर्स मिले, जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो प्रॉब्लम है बिजनेस में, आप वो बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का क्या स्टेप्स है वो बीए के साथ बैठ कर डिस्कस करेंगे कि हाँ आगे ये सब किया जा सकता है, ठीक है तारा। डोमेन एक्सपर्ट भी हम लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट, उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं, डोमेन एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है। SMEs. थैंक यू। और एक और चीज है जो आपका क्वेश्चन था, जब एक बार एक बिजनेस एनालिस्ट, जैसे सर ने बताया कि एक बार एंगेज हो जाता है ना एक प्रोजेक्ट में एक क्लाइंट के साथ, लाइक जो हम सिटी बैंक की बात कर रहे हैं, तो फिर वो उस टीम के साथ, बिजनेस के साथ रेगुलरली काम करता रहता है। तो तब क्लाइंट को भी पता होता है कि किसको अप्रोच करना है, कि ये बंदा हमारे पास टीम में है, इसको ही अप्रोच करना है, यही आगे जाकर रिक्वायरमेंट देगा। तो वो फर्स्ट टाइम के लिए होता है कि हाँ ठीक है, हम जब एक प्रोजेक्ट आता है फर्स्ट टाइम, तो जो इन्फोसिस है वो बताएगा ये हमारा बिजनेस एनालिस्ट है, ये हमारी डेवलपमेंट टीम है, ये हमारी टेस्टिंग टीम है। बट जब एक बार स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद क्लाइंट को ये पता होता है कि किसको अप्रोच करना है, कौन हमारा बिजनेस एनालिस्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो इजी हो जाता है उसके बाद। ओके सर। सर बिजनेस एनालिस्ट का काम एक प्रोजेक्ट एंड से पूरा एंड यूजर को सबमिट करने तक पूरा उसका टोटल काम पूरा वैसे ही पूरा रहता पूरा यस। है, प्रेजेंटेशन से लेके फ्रॉम इंसेप्शन जो हम बोलते हैं स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टिल
एक्चुअल रिलीज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, मतलब डिलीवरी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। जब वो प्रोजेक्ट खत्म होता है तब तक वो बिजनेस एनालिस्ट एंगेज रहता है पूरे प्रोजेक्ट में, ज्यादातर केसेस में। मतलब जिस जिस टीम्स के साथ रिक्वायरमेंट रहेगा उस टीम के साथ इंटरेक्ट करके वो प्रोजेक्ट सबमिट करने तक वो पूरा एंगेज रहता है। हाँ, मतलब जनरली आंसर इसका यस है, बट कभी कभी जैसे सर ने बोला कुछ डोमेन एक्सपर्टीज होते हैं। जैसा एक सिटी बैंक का है प्रोजेक्ट, तो उसमें अगर सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही बिजनेस एनालिस्ट है, कोई कार्ड का बिजनेस एनालिस्ट, तो उसको एंगेज करना पड़ा, या कोई एटीएम का बिजनेस एनालिस्ट, उसका काम रहेगा बस वो एटीएम के काम प्रोजेक्ट या उतने पार्ट को करना और आगे दूसरे बिजनेस एनालिस्ट को दे देना। बट जनरली ओवरऑल अगर 99% केसेस देखो तो हाँ, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बिजनेस एनालिस्ट साथ में हर टीम के साथ चलता है। ओके सर। सर मतलब सुनने में तो अच्छा लगा कि बिजनेस एनालिस्ट मतलब बहुत ऊपर लेवल का है, पर मतलब अभी मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है आईटी फील्ड में। और मतलब अभी इसके बाद अब अभी मैं डाटा एनालिस्ट का कोर्स कर रही हूँ, उसके बाद अगर बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या मतलब कोर्स करना पड़ेगा, और क्या मेरा मतलब अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, सीधा कंपनी हायर करेंगे मुझे? इसका आंसर आई विल शंकर सर, आप देना चाहेंगे? यस यस। देखो आज पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप पहले जो आप जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सो उसी एक्सपीरियंस को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली यूटिलाइज करके ये सब करते हैं, ठीक है। आपके यू शुड गेन सम एक्सपीरियंस। पहले तो ये है कि बिजनेस एना जब हम लोग बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, यू शुड ऑल्सो गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। आप जब ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा बिजनेस क्या है। अगर मुझे बैंकिंग में एक बिजनेस एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लाना है, मुझे पहले तो बैंकिंग थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, राइट। लेट्स से कैपिटल मार्केट्स में मैं बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता हूँ इन कैपिटल मार्केट्स डोमेन, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो डोमेन का। उसके बाद फिर आपका प्रोफाइल जो है, वी कैन अलाइन दैट प्रोफाइल टू बिजनेस एनालिस्ट रोल, ठीक है। अदरवाइज एज ए फ्रेशर थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है एज ए फ्रेशर। बिजनेस जूनियर बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न रहते हैं, बट या थोड़ा कम रहते हैं उसमें उसमें अपने को वी शुड गेन सम एक्सपीरियंस फर्स्ट। 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा तभी जाके हम लोग इस पे सीख सकते हैं। सी दिस इज गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज, बिकॉज आपको एंड टू एंड चीजें पता है। इसमें आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएल्स हो गया, एजाइल हो गया, कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं, कैसे मॉकअप्स आपका जो टेम्पलेट वगैरह कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग वी विल लर्न हियर। एंड इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न स्किल। बट हाँ, आप हम लोग जस्टिस कर पाएंगे if actually you gain some experience, then we will put this skills कि हाँ आपने ये सीखा है, ठीक है। पूरा फ्रेशर लोगों के लिए तो हम लोग से आया, सो वी आर नॉट हियर कि लाइक किसी मतलब बंदे को इंटरेस्ट नहीं है ऐसे ही खींच के ले आएंगे। बट हाँ, इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज, मतलब नॉलेज गेन करना है ये डोमेन में, इसलिए हमने सेशन रखा था। इट इज नॉट फॉर सेलिंग अ कोर्स और सेलिंग समथिंग। तो मतलब क्या बीए क्या करता है, रोल ऑफ ए बीए, यू शुड आगे जाके आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे, सो इट शुड नॉट बी ए सरप्राइज फॉर यू। आपको नहीं पता भी एक रोल है, वो लोग क्या क्या काम करते हैं, तो आपको पहले से आइडिया हो गया कि हाँ। लेकिन कुछ कुछ बंदे हैं जिनका एमबीए बैकग्राउंड है, वो बोलते हैं कि नहीं सर मुझे बिजनेस एनालिटिक्स सीखना है डायरेक्टली। तो हम लोग पहले उसको डेटा एनालिटिक्स सिखाते हैं, और प्रशांत सर का जो है वो 1 सवा महीना लगेगा पूरा सीखने के लिए। वो फिर ऐड हो जाता है पूरा उसमें, आपको आपको प्रोसेस समझा जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे लिया जाता है, रिक्वायरमेंट गैदर कैसे किया जाता है, और आप मतलब डॉक्यूमेंट कैसे करते हो, यूएमएल में डिजाइन कैसे करते हो। यूएमएल मतलब आप हम लोगों ने पढ़ा है ना, डेटा फ्लो डायग्राम्स वगैरह, 10th में या 11th में हमने पढ़ा है, राइट। फ्लो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, याद है कि नहीं। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पर रहेगा कि एक एप्लीकेशन में आप लॉग इन कर रहे हो, आपको कौन सा स्क्रीन दिखना चाहिए, आप ये बटन पे क्लिक करोगे तो क्या, फिर कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ नेविगेट करोगे। ये सब पूरा फ्लो चार्ट, एप्लीकेशन का पूरा फ्लो चार्ट रहता है, मतलब समझाते हैं। वही काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जैसा ही डेटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है। और प्रशांत सर, आप और कुछ मतलब फ्रेशर लोगों के लिए आप कुछ।
Nothing else. मतलब जो what I can think of now, but yeah, I think thank you. You kind of like briefed it very well. कि अभी पहले the main aim is to gather base level से मतलब ground level का detail. So then you can think of being an expert in that and see के ठीक है अब मैं कैसे होता है समझता हाँ हूँ बट ये और एक एक्चुअल हाँ में और एक बिजनेस चीज सेंस में कैसे हो रहा है करेक्ट और एक क्या चीज मैं बोलूंगा और एक चीज मैं बोलूंगा अगर आप यू आर एक्सट्रीमली गुड एट कम्युनिकेशन स्किल लोगों के साथ जो कोऑर्डिनेशन ये सब में बहुत अच्छे हो तो कभी क्या कभार आप एनालिस्ट आ जान इंटर्न Yeah, बी ए इंटर्न ट्राई कर that's an सकते advantage. That's an advantage. That's something which will help you कि अगर आपको कोई बोलता है कि 2 years में बनोगे, if your communication is very good, then आप वो 3 months में भी you can be that person. कि business analyst एक junior business analyst जो कि which who will be aligned with group of business analyst पूरी टीम के साथ तो आप align हो जाओगे as a junior business analyst and then you grow in that stream only. Sir, I do have a Apart, question, sir. Yeah, या please. आशीष गो अहेड Sir, after being a data analyst and after having 1 year of relevant experience in this like related field, how much time or how much case sales it's gonna take to be a BA in future? Look, as Shankar sir has said, mentioned that once you gain experience in that field, it depends on the opportunity. So sometimes within the organization, you get times you get an opportunity that they are hiring for some or internally. What happens is, so there are different scenarios into it. एक तो हो गया कि आपने direct ही you gain some 1 year of knowledge and then you apply to a different organization, different company में आपने apply किया and you say I have some functional knowledge of this also. I am a hands-on data analyst, but I have functional knowledge. तो you आप directly कोई एक associate business analyst role के लिए direct apply कर रहे हो and then since you have good communication skill, you have that background of that कि कैसे चलता है, you have that hands-on data analyst experience, they'll take you कि ठीक है, let's take this guy और अभी थोड़ा एक जूनियर रोल पे लेंगे इज अ बिजनेस एनालिस्ट बट ही विल ग्रो तो एक वो रूट हो गया दूसरा होता है बहुत बार विद इन टीम ऑल्सो आपका जैसे आपका बिजनेस एनालिस्ट नहीं है या कभी कभी आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वेयर business analyst is on leave he is not present at that moment कि कुछ किसी वजह से 1 month 2 months के लिए वो नहीं है तो तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है यू कैन स्टेप अप के आई कैन प्ले दैट रोल मुझे 1 year का एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन मैं थोड़ा थोड़ा जाके इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ since we have a full-time business analyst but he is not available as of now so I can fill in that role तो उससे क्या होता है आप धीरे धीरे करके you learn that also but द प्रॉब्लम इज कि वो सब चीजें ना ऑर्गेनिकली और चांस के ऊपर डिपेंड करेंगी अदर थिंग इज यू एज सर सेड दैट देयर आर पीपल जब आपका एक्सपीरियंस हो गया 1 year का वी कैन ट्रांजिशन यू इनटू दैट रोल थोड़ा इजी आपके लिए और बना सकते हैं जो वी कैन ट्रांजिशन यू दूसरे जो फैक्टर्स बताया मैंने वो डिपेंड करते हैं आपके लक के ऊपर ज्यादा लक फोकस्ड है ये जो चीज हो गई यू हैव दैट स्किल आल्सो एज अ बिजनेस एनालिसिस की आपने आप ग्राउंड पे हैंड्स ऑन डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो हम वी विल एम्पावर यू विद अ बिजनेस एनालिसिस स्किल्स आल्सो तो वो आपके साथ एक और टॉप स्किल हो गया मतलब आपके साथ 2 स्किल्स हो गए वन इज योर हैंड्स ऑन स्किल वन इज योर द स्किल यू एक्वायर्ड थ्रू द लर्निंग ऑफ थ्रू वाया कोर्सेज एंड ऑल सो दैट हेल्प्स यू इन मूविंग टू दोज रोल्स I hope Thank you, sir. I'm able to Thank answer. you. Okay. Yeah, got yeah, it, sir. Thank you, sir. apart from that operational stuff in portraying data to SME team or to any client, like are there any specific technical skills, the difference between a business analyst and a data analyst? Yes, business analyst knows the inside of the business. That's the मतलब क्या कहते हैं ना कि बिजनेस चल किस वजह से रहा है एज सर ऑल्सो मेंशन कि आप उस डेटा का करोगे क्या एंड आप उसको कैसे मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करोगे कि वो क्लाइंट के लिए काम होगा बिकॉज वो डेटा का लिए जो वाई अ क्लाइंट विल पे यू फॉर दैट डेटा एनालिसिस वर्क बिकॉज ही वांट्स उस रॉ डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विच ही कैन यूज लाइक आपका उबर का एग्जांपल विच सर हैज गिवन विच उबर भुवनेश्वर कैन यूज टू अर्न मोर प्रॉफिट
या अपना सर्विसेज को कुछ ऐसा इंप्रूव करके कि मेन गोल इज टू अर्न प्रॉफिट क्लाइंट की टर्म से। बट अगर अगर आपको बिजनेस इंसाइट्स ही नहीं होगा, और आप ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि दैट्स द मेन क्रक्स। जो कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर क्या है, आप डेटा एनालिसिस करके डेटा तो दे रहे हो, बट जब वो मीनिंगफुली नहीं दे पाओगे आप क्लाइंट को, तो वो सारा आपका उसका रेलेवेंस ही नहीं रहेगा उस डैशबोर्ड्स का। उसको रेलेवेंट बनाने के लिए क्लाइंट के लिए, सो दैट ही ऑल्सो अर्न्स प्रॉफिट एंड ही इज हैप्पी विद योर सर्विसेज, तो वो बिजनेस इंसाइट्स चाहिए। तो बिजनेस का आपको समझ आना चाहिए कि चल किस तरह रहा है, दैट्स द मेन थिंग। मतलब वो लग रहा है कि दैट्स अ वेरी इजी थिंग, बट अगर आप सच में सोचो किसी भी एक प्रोडक्ट को आज जैसे गो बैक टू, मतलब जब आप इस सेशन से बाहर जाओगे, थिंक अबाउट इट। कुछ भी देखो, नेटफ्लिक्स सोचो, कोई एक जो भी प्रोजेक्ट आप फोन में कुछ यूज करते हो, एप्स यूज करते हो, सोच के देखो कि अगर आपको इस पे कुछ और चीज नई लानी हो तो क्या करोगे। और जब आप सोचने लगोगे ना, आप थिंक कि कितने So in आंसर्स आप दे पा nutshell, रहे हो। a person with zero technical skill, with good knowledge in data and like presentation and documentation, better data understanding can be placed in Be a a BA role. business analyst. Yes, Okay. yes. Answer is No yes. need, no need of understanding any specific like tools. Like Okay. Informatica and Cognos type, right? Okay. That's what you were saying. हाँ, नहीं, not required. बेसिक बेसिक मतलब टूल तो if चाहिए। you have, एक्सेल, तो हाँ, एक्सेल if you पावर have, भी तो that's, चाहिए। हाँ मतलब उतना तो चाहिए, हाँ राइट। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब प्रेजेंटेशन प्लस आप उस डेटा को समझने की, यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट डेटा। तो वो कैसे रहता है, जब आप देखो डेटा एनालिसिस के एक बीए बनते हो ना, बिजनेस, यू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट फॉर अ डेटा एनालिसिस टीम। तो उस केस में क्या होगा ना, आपको डेवलपर नहीं बनना है या आपको डेटा माइनिंग नहीं करनी है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, बट आपको वो डेटा को समझने के लिए उस टूल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं उस टूल को, कैसे उसमें से आप बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो उसके लिए वो इट्स ऑलवेज गुड कि आपको अगर हैंड्स ऑन उस टूल की नॉलेज होगी ना, दैट्स वेरी गुड। मतलब आपके चांसेस ऑफ बिकमिंग अ बीए इज वेरी हाई देन। तो जनरली आप देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो आप जैसे डेटा एनालिस्ट बोल रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डेटा एनालिस्ट जो होंगे ना, वो लोग बिजनेस एनालिस्ट में ट्रांजिशन करेंगे क्योंकि उनको हैंड्स ऑन टूल आता है। तो दे हैव दैट स्किल, और वो धीरे धीरे करके काम करते करते प्रोजेक्ट्स पे दे बिल्ड देयर बिजनेस इनसाइट्स आल्सो, कि कैसे बिजनेस एनालिस्ट काम करता है, उसके साथ काम करके ऑब्जर्व करके वो उस स्किल को भी अडॉप्ट करते हैं, एंड देन दे ट्रांजिशन इनटू दैट स्किल। All right, Pinaki has a question. Is business analyst and project manager both same or different? So we have डिफरेंट, covered बोथ this in the आर, या slide बोथ आर itself. डिफरेंट, Yeah. both Yes, are please. different. A business analyst can sometimes play a role of project manager, but आपका project manager will never be a business analyst. Project manager सिर्फ एक project की deadlines track करेगा कि it has to be started on let's suppose 1st of January, आपका 30% हमारा मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए या 50% मार्च तक हो जाना चाहिए। जून में इट नीड्स टू बी डिलीवर्ड, इसका डेव हो गया है, इसका टेस्टिंग हो गया है, वो सब वो ट्रैक करेगा उस माइलस्टोन्स को। बट बिजनेस एनालिस्ट is someone who will actually work uh, on those projects. The project manager will never work on the project. He'll just track the milestones. Like a principal, आप देखोगे ना स्कूल में प्रिंसिपल होता है कि हाँ ठीक है, ये टाइम स्कूल का चलना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट सेशन के टर्म्स के एग्जाम होने चाहिए, सेकंड के होने चाहिए, थर्ड के होने चाहिए, वो सिर्फ वो ट्रैक करते हैं। बट एक्चुअली में जो डिलीवर करता है, दोज आर द टीचर। सो बिजनेस एनालिस्ट इन दैट केस इज अ टीचर जो आपको साथ साथ लेके गाइड करेगा, मेंटर होता रहेगा। वो ही विल वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, बट प्रोजेक्ट मैनेजर विल ट्रैक इट फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल। So that's why और business हाँ, guys, it is not about can yeah. be a project manager also. So guys, it is not about खाली बैंकिंग फिनेंस ये सब में ही बीए होता है। सपोज अनुराधा, you are working on test delivery solutions, right? Assessment, test delivery solution, right? Yes or no? Anuradha, am I audible? Yeah, so business project manager is generic. अगर आपको बोलूं तो business analyst is, as Shankar sir said, domain expert, SME, subject matter expert. ओके, सपोज आप लेट्स से मैं एयरलाइंस डोमेन में काम करता हूँ गाइस। सो एयरलाइंस डोमेन में 2-3 साल काम किया मैंने, मुझे पूरा एंड टू एंड समझ में आ गया कि कैसे चलता है।
कैसे कस्टमर मैनेजमेंट चलता है, मतलब टिकट बुकिंग वगैरह, ऑन बोर्डिंग वगैरह सब कुछ कैसे चलता है, या कैसे आपका फ्लाइट मैनेजमेंट, फ्लाइट में कितने वेट की लगेज जाना चाहिए और क्या फ्यूल रहना चाहिए, फ्लाइट अगर ट्रिप करने के लिए कितना फ्यूल चाहिए, पूरा एंड टू एंड प्रोसेस मुझे पता है और 3-4 साल मैंने उसमें काम किया। तो आई कैन ऑल्सो अप्लाई एज ए बिजनेस एनालिस्ट इन लेट्स से एयरलाइंस डोमेन, बिजनेस एनालिस्ट इन ई लर्निंग। सपोज मैं ई लर्निंग में काम कर रहा हूँ, 2-3 साल मैंने ई लर्निंग में काम किया, मुझे पूरा समझ आ गया एंड टू एंड बिजनेस। तो मैं वो प्रोसेस, प्रशांत सर क्या समझाएंगे आपको, पूरा एंड टू एंड प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे डिलीवरी करने तक, क्या क्या मतलब आप सीखोगे, कैसे डिलीवर करना है, कैसे कोलाबरेट करना है, कैसे बात करना है, कैसे समझना है रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, अजाइल में आपका रोल कहाँ पे एग्जैक्टली फॉल होता है। सो एवरीथिंग दैट यू विल लर्न, बट डोमेन तो आपको सीखना है। आपका जो करंट काम कर रहे हो, लेट्स से सेल्स डोमेन हो गया या कोई भी डोमेन, आप वो ड्यूरिंग आई मीन क्या बोल सकते हैं, आप जब जॉब कर रहे हो, सो डोमेन आप धीरे धीरे सीख लो, उसके बाद ये आई मीन बिजनेस एनालिसिस क्या है वो सीख के फिर दोनों को हम लोग अलाइन करके रेज्यूमे में अपडेट कर सकते हैं पूरा अच्छे तरह से। बट थोड़ा बहुत डोमेन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हो। ओके, सो आई थिंक और कुछ क्वेश्चन है? सर हेलो हाँ बोलो। सर, बिजनेस एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ये दोनों सेम है या कुछ अलग है? Then again, both are different. Financial analysis जो होते हैं ना आपके एनालिस्ट, those work on your valuations, numbers, जो आपके कंपनीज के एनुअल स्टेटमेंट्स आती हैं, आप एनुअल रिजल्ट्स वगैरह देखते हो, so those are the people who work on those numbers basically, to give you an output कि whether your organization or company is in profit or loss, कितने हमारी लोन्स लाइबिलिटीज हैं, कितने हमारे एसेट्स हैं, वो सब चीज का जो आपका बैलेंस शीट होता है, दे वर्क ऑन दैट, दे वर्क ऑन दैट पार्ट। बट जो बिजनेस एनालिस्ट है वो उसका मतलब वो डिफरेंट है। बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बोथ मतलब आर टर्म्ड एज एनालिस्ट ओनली, बट फाइनेंशियल एनालिस्ट इज ऑल अबाउट नंबर्स। ओके सर। Uh, yeah. सर और एक क्वेश्चन है। सर एक्चुअली रियल टाइम एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ। मेरा एक एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग का एक एप्लीकेशन है। एक्चुअली मेरा एक क्लाइंट है होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसका एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें उनका कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जैसे कि कस्टमर इधर आ रहे हैं, उनका कुछ प्रोडक्ट कुछ खरीद ले, लेकिन प्रॉफिट नहीं दे रहा, कोई खरीद नहीं जा रहा है उससे। तो वो सॉल्व कैसे बिजनेस एनालिसिस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये एक्चुअली। उसमें क्या होता है, देखो, डिपेंड्स ऑन सिनारियो टू सिनारियो, राइट। उसमें बिजनेस एनालिस्ट को आप लगाओगे तो ही अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है, गैप ढूंढेगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए और आपका जो पेज है वो क्या केटर कर रहा है। तो डेफिनेटली ही मे बी एबल टू गिव यू के इनसाइट्स कि क्या क्या चीजें एक्चुअली आपका चेंज वेरिएशन कहाँ है, कि आपका क्लाइंट को क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हो, उसका डिफरेंस वो बता पाएगा। अब उसके बाद क्लाइंट आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स, दैट्स मतलब टोटली अ लक गेम, राइट। मतलब बिजनेस कैसे चलेगा वो आपको ये बता देगा कि आप जिस चीज की या आप केटर कर रहे हो तो उस तरीके के क्लाइंट नहीं है, या आप जिस क्लाइंट को टारगेट कर रहे हो उस तरीके से आपकी वेब पेज नहीं है। उतना पार्ट आपको वो एनालाइज करके दे बता पाएगा। उससे आगे बिजनेस कैसे चलाना है, दैट ही मे नॉट बी एबल टू टेल यू, राइट। यस यस सर, एक्चुअली वो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉफिट या ग्रोथ नहीं हो रहा है उनका। जो बिजनेस है उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। वो Jyoti, उस टाइम पे so बिजनेस। यस सर। Jyoti, I want to add something. Okay, those part are basically handled by business consultant of a organization who are into focusing on the business growth and all, right? So that is the other ओके part. ओके Okay, that has nothing to do with this. So yeah. So किसी ओके सर, किसी ओके। कोई किसी का और डाउट है regarding I this? have a question. Yeah, sure. Please go ahead. Yeah, good evening, sir. Sorry I joined the session a little bit late, but so far what I have understood is the role of a business analyst is to have business insight, and he needs to work with every department. He has to collaborate with the data analysis department, the client, and he will basically work from the beginning of the project till the end, till the delivery of the product, right?
So let's just say that I am a guy from a non-technical background and I've been working as a data analyst for 2 years now. And now I want to be a business analyst, but there are people who come from a BTech background with an MBA degree who have more experience regarding technical software and business insight. So in that case, the company will prefer a seasoned data analyst or a guy with a technical background with an MBA degree. And if the company would prefer a technical guy with an MBA degree, what can we do coming from a non-technical background? What can we do to better equip ourselves to compete in such scenarios? Okay, so there are 2 to 3 sections in this question, or maybe 3 questions which you have asked. So first thing is, in those cases, can you apply, or would you be eligible if you are competing with, like, you have your hands-on experience and then there are some MBAs with technical degrees. So definitely, if you see the hands-on experience, if you have hands-on experience and you are able to articulate the same to the interviewer, then definitely a person who has worked on ground has an added advantage. That's always the case. So who has worked on ground has an added advantage in terms of, because he knows how the work is being done at that level. So so then chances of he becoming that, or he getting that role, is more. But then there are few other factors also, like if there's a person, like you say that you are hands-on experience with data analysis, but then the role that you are applying is someone who is a finance, or that's in a financial domain, or a typical capital market domain, which needs hardcore knowledge about that subject also. And then there is a guy who is a MBA with tooling knowledge and all, and they are able to answer the domain questions much uh, with a much easy, or I say with much ease, and they know the insight of that concept than you do. So then they get that advantage. So it depends on role to role, but generally, if you ask me, experience always counts, or is an added advantage every time. Then the second, or I think the other part of the question was how you can equip yourself. So as Shankar sir said, there are other things which can be done once you acquire that knowledge. We can upskill you, we can kind of like reskill you in terms of like getting that added advantage in terms of understanding and explaining, like what are the business analysis specific things that you should know. So that becomes a, so this gives you an extra advantage in terms of your hands-on knowledge of the data analysis, plus the I would say the gained knowledge through the courses and all that you get. Shankar sir, anything you want to add into it? Yeah. So Arup, let's say आप अभी ट्रेडिंग वगैरह करते हो, right? Yes, sir. So actually, Prashant sir has extensively worked on capital markets domain. Basically, capital markets में forex हो गया, wealth management हो गया, और commodities platform हो गया, जहाँ पे international trading वगैरह होता रहता है, Murex करके एक tool, ये सब में basically काम करते हैं, ठीक है? तो अगर Yes. डोमेन वाइज चाहिए तो ट्रेड कैसे बुक होता है, जैसे ट्रेड लाइफ साइकिल आपको सीखना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। बॉन्ड कहाँ से चालू होता है ट्रेड, अगर बॉन्ड आपको सेल करना है या बाय करना है, कहाँ से एग्जैक्टली ट्रेड बुक होता है, और वो कैसे जाता है मिडिल ऑफिस को। फ्रंट ऑफिस आपने सुना होगा, फ्रंट ऑफिस और मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस। मिडिल ऑफिस में कैसे ट्रेड वेरीफाई होता है, अकाउंटिंग एमटीएम एंट्रीज वगैरह कैसे होता है, देन बैक ऑफिस में जाके कैसे सेटल होता है, नेटिंग वगैरह सब, ये सब डोमेन के ऊपर ही हैज एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन दिस कैपिटल मार्केट्स डोमेन। तो आपको अगर कैपिटल मार्केट्स डोमेन में एक बीए बनना है तो यू हैव टू बी इक्विप्ड विद ऑल दिस, ट्रेडिंग कैसे होता है, ट्रेडिंग लाइफ साइकिल, या प्रोडक्ट कैसे चलता है, डेरिवेटिव्स कैसे चलता है, कमोडिटीज कैसे चलता है, ठीक है, एफएक्स कैसे चलता है, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप ये डोमेन में थोड़ा नॉलेज एक्वायर करो, कैपिटल मार्केट्स डोमेन पहले समझो, उसके बाद बिजनेस एनालिसिस समझो, तो डेफिनेटली इट विल बी एन एडेड एडवांटेज। ऑलरेडी ये टूल्स सीक्वेल हो गया, क्योंकि प्रशांत सर को भी कभी कभार ऐसे सीक्वेल में 1-2 क्वेरीज फायर करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ सिनेरियोस का टेस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है कि नहीं। अगर मैं लेट्स से करंट एक फ्रंट एंड में मैं करंट अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारा टेबल में एंट्री जाना चाहिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल हो गया, और मेरे पास अकाउंट स्टेटस टेबल हो गया, ट्रांजैक्शन टेबल हो गया, कस्टमर टेबल हो गया। तो देयर कुड बी 50+ tables which will get impacted when you just close an account in the front end.
तो बीए को वो इंश्योर करना रहता है कि बीए वो डिजाइन में लिख देगा कि भाई आप ये अकाउंट क्लोज कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये सब अकाउंट में ये सब टेबल्स में इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, और ये पर्टिकुलर कॉलम में स्टेटस ये हो जाना चाहिए, और दूसरे कोई कॉलम्स में ऐसा स्टेटस जाना चाहिए। और ये सब जो है ना बेसिकली, ये जैसे रिटेल बैंकिंग, कोई अगर रिटेल बैंकिंग में जाना चाहता है तो आपके पास नॉलेज है, टूल्स का नॉलेज है, ओनली थिंग इज आप एक डोमेन में नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। आज जूनियर बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न वगैरह ट्राई कर सकते हो, एंड कंपनीज डेफिनेटली हायर फॉर दिस रोल। आप खाली बीए में हायर नहीं करेगा, बीए विथ सम बिजनेस नॉलेज विल डेफिनेटली हैव एन एडेड एडवांटेज। ठीक है। Yes, sir. Any other questions? Anyone? Oh. So, Shankar sir, should we wrap up? I think yes, and definitely if people have any questions, I'll definitely share Sure. it with Prashant sir. Yeah. So, with that, I want to express my sincere thanks to everyone who contributed to the success of this webinar. And special thanks to Prashant sir for joining us, and Shankar sir as well. So your support has truly been appreciated to us. Let's carry forward with this inspirational and gained insights from this webinar, and continue with this session, such sessions furthermore. So thank you for being all part of this, and have a wonderful evening. Thank you guys for joining today's session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yep. Thank you, sir. Thank you.